Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahsan Iqbal, roll number 9, and I, with my group fellows Shahid Bhatt, Ahmad Hussain, and Ali Haidar, are going to present on the topics of schizophrenia and autism. हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना बहुत से लोगों को देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देखती आंखों और सुनते कानों के सामने महसूस होने वाले लोग वहाँ मौजूद ही ना हों? ऐसा ही कुछ होता है इस मसले में। So let's start my topic with schizophrenia, as schizophrenia is a serious mental disorder in which people interpret reality abnormally. Schizophrenia may result in some combination of hallucinations, delusions, and extremely disordered thinking and behavior that impairs daily functioning and can be disabling. Its major symptoms include hallucinations, delusions, disorganized thinking, and disorganized speech. Also mentioned some negative symptoms as you can read on the screen. So what the term hallucinations mean? Hallucinations are sensory experiences that appear real but are created by your own mind, an experience involving the apparent perception of something not present. The symptoms may be caused by mental illness. They can affect all five of your senses like hearing, seeing, feeling, smelling and tasting. So आप लोग कभी सोच सकते हो कि ऐसा हो सकता होगा कि आप लोग कुछ आवाज़ों को सुन रहे हो, कुछ लोगों को देख रहे हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते। तो ऐसा ही कुछ होता है, जैसे कि इसकी कैटेगरीज और टाइप्स के अंदर है विजुअल हैलुसिनेशंस। ऐसी चीज़ों को देखना या ऐसे लोगों को देखना, ऐसे पैटर्न्स को देखना जो बाकी लोग नहीं देख सकते। बेसिकली वो आपके ब्रेन से जनरेट हो रहे होते हैं। ऑडिटरी हैलुसिनेशंस के अंदर ऐसी आवाज़ों को सुनना जो बाकी लोग नहीं सुन पा रहे और जो आवाज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। टैक्टाइल हैलुसिनेशंस के अंदर टच और मूवमेंट की फीलिंग होना। और olfactory hallucinations के अंदर involve your sense of smell. Gustatory hallucinations are similar to olfactory hallucinations but are involve your sense of taste instead of sense of smell. Here are some GIF images showing that how hyper aggressive schizophrenic patients can actually be. You can see on your screen. No, the other major symptom of schizophrenia is delusion. So what is delusion? Delusion is a kind belief that is not amendable to change in light of conflicting evidence. As a pathology, it is distinct from a belief based on false or incomplete information, confabulation, dogma, illusion, or some other misleading effects or perceptions. The types of delusions are also mentioned as erotomanic, grandiose, jealous, persecutory, somanic, mixed, and unspecified. The descriptions are also written on the screen so you can read. There are different types of negative symptoms also, as lack of facial expressions, lack of speech, lack of motivation, lack of interest in socializing. These are the secondary symptoms and optional in patients with schizophrenia. But the primary symptoms through which the schizophrenic patients are diagnosed are hallucinations, positively hallucinations and delusions, and disorganized thoughts, aggressiveness, etc. That was all from my side. Now, for further explanation, I would like to call Mr. Shahid Bhatt. Thank you. Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Shahid and my roll number is 20. Here are some causes of schizophrenia. The exact causes of schizophrenia are unknown. Genetics, drug abuse that may contain some kind of drugs like cannabis and benzodiazepine, childhood trauma, depression for a long time, lack of sleep for a long time, change in brain chemistry like dopamine and serotonin, and oversensitive dopamine receptors. Here are some types of schizophrenia. There are 5 types of schizophrenia, but the most commonly occurring type of schizophrenia is paranoid schizophrenia. Paranoid schizophrenia एक ऐसी टाइप है schizophrenia की जिसके अंदर पेशेंट को ये महसूस होने लग जाता है कि तमाम लोग उसके खिलाफ हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी तरह उसको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो पेशेंट होता है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस का भी शिकार होता है जिसमें उसको डिफरेंट टाइप्स की आवाजें आती हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया की जिसके अंदर पेशेंट का बिहेवियर इंतहाई
इलॉजिकल और इंतहाई पर्पसलेस हो जाता है, और उसकी थॉट्स इलॉजिकल हो जाती हैं। उसको स्पीच में भी मसाइल आते हैं, उसकी स्पीकिंग भी पहले की तरह नहीं रहती। और इवन के कई बार ऐसा भी होता है कि उसका बिहेवियर इतना स्ट्रेंज हो जाता है कि वो गर्मियों के अंदर कोट और जैकेट्स और हर किस्म के गर्म कपड़े जो है ना पहनना शुरू कर देता है। तीसरे नंबर पे है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया की जिसके अंदर पेशेंट की जो है ना अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, उसकी मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। वो कई बार ऐसे होता है कि पूरा दिन वो इमोबाइल फॉर्म में या बैठा रहता है या लेटा रहता है या खड़ा रहता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि वो सारा दिन जो है ना चलता फिरता रहता है और मूव करता रहता है किसी न किसी तरह। फोर्थ टाइप है अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड टाइप स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी टाइप है जिसमें 2 से ज्यादा टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया मर्ज होती हैं, और इसके सिम्टम्स इसी तरह से होते हैं: डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और कैटाटोनिक बिहेवियर। 5वें नंबर पे है रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें ये एक ऐसी टाइप है जिसमें पेशेंट जो होता है वो एक लार्ज टाइम के लिए स्किज़ोफ्रेनिया को फेस करता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर उसके सिम्टम्स कम से कम होना शुरू हो जाते हैं, और एक टाइम आता है कि उसके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो उस टाइम पे उसको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है, और ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है उसको डायग्नोस करने के लिए। ये इस तरह की जो है ना टाइप है। So this is all from my side. Now I will request Ahmed for further proceedings. Thank you so much. Assalamu alaikum to all. My name is Syed Ahmed Hussain and my topic of presentation is treatment options for schizophrenia. First one is primary treatment, in which psychiatrist gives antipsychotic drugs to patients to deplete dopamine activity in the brain. And next one is second treatment, in which psychiatrist gives mood stabilizers to patients to prevent severe mood swings. And third one is optional, in which psychiatrists prescribe antidepressants and sleeping pills to patients to improve sleeping wake cycle. Now I will explain you schizophrenia with example. In this example, we have schizophrenic patient Mr. X and his father Mr. John took him to Dr. J. Dr. J started to examine Mr. X and asked, "What's the matter?" Mr. John replied, "My son is not well, he talks to himself, he becomes aggressive, he does not eat well, he does not take bath." Then Dr. J tried to talk with Mr. X. "For how many times have you been talking with ghosts?" Mr. X replied, "They are not ghosts. They have came from hell to remind me that I was wrong." Then Dr. J asked Mr. John, "How much hours does he sleep?" Mr. John replied, "Only 3 to 4 hours." Then Dr. J asked Mr. John, "Did Mr. X had any drug history?" But Mr. X replied, "Of course, I cannot suppose my life without smoking and marijuana." Dr. J said, "Oh, so that's why." Dr. J asked Mr. X, "Those people from hell, can you listen them or you also see them live?" Mr. X replied, "They come to me and talk, but I can only see them sometimes. I will slap on your face if you will ask me anymore." After examining the whole situation, Dr. J said, "Please don't." Mr. John asked Dr. J, "Will my son be fine, doctor?" Dr. J said, "Yes." After examining the whole situation of patient X, Dr. J wrote the prescription and instructed Mr. X to go outside and stop talking with John after giving him prescription. Dr. J said to Mr. John, "I am sorry, your son is suffering from a serious mental condition called schizophrenia and you have to deal him with patience." Mr. John replied, "Oh God, please help me." Dr. J said, "You have to visit again after 2 weeks. You can go now." Mr. John said, "Okay, thanks doctor." Here you have seen how Dr. J examines Mr. X and politely collects history from Mr. X and his father John.
Mr. X is diagnosed with schizophrenia. Now I would like to call Sayyid Ali Hazard for the further explanation of autism. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Ali Hadar, roll number BCS 43. I'm going to explain autism. Question is that autism क्या है? Autism basically developmentally disorder है जो कि बच्चों की development में इफेक्ट होता है और ये लॉन्ग लाइफ डिसेबिलिटी देता है. इसमें बच्चों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कम्युनिकेशन में चैलेंजेस हैं, बिहेवियर चैलेंजेस हैं और भी बहुत से हैं. अगर दुनिया में देखा जाए तो 88 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज्म का शिकार होता है. ऑटिज्म में बॉयज़ की जो सी रेशो है वो गर्ल्स से 4 गुना ज़्यादा है. अब क्वेश्चन ये है कि ऑटिज्म की रीजंस क्या, किन वजूहात की बिना पे ऑटिज्म होता है. तो ऑटिज्म की बहुत सी वजूहात है, जिनमें से ब्रेन अबनॉर्मलिटी है ड्यूरिंग बर्थ और प्रेगनेंसी, एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट है, जेनेटिक्स इशू है, फिर मदर की एज अगर 40 ईयर प्लस हो तो भी ऑटिज्म का बच्चा शिकार हो सकता है. अब नेक्स्ट इज के ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या हैं, यानी अगर कोई बच्चा ऑटिज्म का शिकार है तो उसकी निशानियां क्या हैं. तो निशानियों में से मेन निशानियां मैं कुछ बताऊंगा, जिसमें लेक ऑफ सोशल इंटरेक्शन है, यानी उसकी सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होगी. फैमिली मेंबर्स के अलावा बाहर बहुत कम मिलेगा, सोशल गेम्स में बहुत कम पार्टिसिपेट करेगा. फिर लेक ऑफ रिस्पॉन्सनेस, यानी सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगा. अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो वो सही से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, पॉइंट आउट चीज़ें सही नहीं कर पाएगा. तो फिर लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाता है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कम होती हैं. फिर अगर कोई बच्चा एक ही चीज़ से एसोसिएट रहता है, यानी अगर उसके पास कोई पेन है तो 24 आवर्स में से 18 आवर वो पेन के साथ ही लगा रहता है, उसके साथ ही खेलना रहता है. अगर उसके पास कोई खिलौना है उसी के साथ वो खेलता रहता है, तो ये भी ऑटिज्म के शिकार होने की निशानी है. अब ऑटिज्म को जोन से है वो 3 फंक्शनल लेवल्स में डिवाइड किया गया है. पहला जो लेवल है, इसमें बच्चा जो है वो फैमिली मेंबर्स के साथ तो सही बिहेव कर रहा होता है, यानी फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसकी बेहतर होती हैं और वो बिहेव भी सही कर रहा होता है. लेकिन फैमिली से बाहर वो जो है वो सही तरह से रिएक्ट नहीं कर पाता, यानी उसकी बाहर जो है दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन वैसे नहीं होती और ना ही वैसे कम्युनिकेट कर पाता है. इसमें लेवल 1 में बच्चे को बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिस वजह से वो इजीली जो है वो रिकवर कर जाता है और ऑटिज्म से छुटकारा पा लेता है. अब आ जाता है लेवल 2. लेवल 2 में बच्चा जो है वो फैमिली मेंबर्स से भी जो थोड़ा सा दूर हटना शुरू हो जाता है, यानी इसमें भी वो इसमें ये होता है कि बच्चा फैमिली मेंबर्स के साथ वैसे बिहेव नहीं करता जैसे कि लेवल 1 में था, लेकिन यानी चीज़ें डिस्कस करता है लेकिन वैसे नहीं जैसे करनी चाहिए, यानी फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसकी कम्युनिकेशन कम हो गई है और फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट भी वो वैसे नहीं कर पा रहा. तो इसमें ये होता है कि बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में होता है और उसकी रिकवरी के चांसेस होते हैं और वो इजीली तो नहीं लेकिन थोड़ी सी मेहनत के साथ, यानी उसको एक अच्छी खासी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो जो है वो रिकवरी की तरफ आता है और काफ़ी हद तक रिकवर कर जाता है. अब जो लेवल 3 है, इसमें जो है वो बच्चा इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि वो एक रिजिड कंडीशन में पहुंच जाता है, यानी वो फैमिली से भी दूर हट जाता है, फैमिली से भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा और बाहर तो पहले ही नहीं था कर रहा. इस कंडीशन को आप डेंजरस कंडीशन कह सकते हैं, यानी इस कंडीशन में बच्चा रिकवर तो कर जाता है लेकिन कंप्लीटली रिकवर नहीं कर सकता. रीजन इज दैट कि उसने लेवल 3 पे जब पहुंच जाता है बच्चा तो वो बहुत हाई लेवल होता है, इसमें रिकवरी सबसे लेट होती है और कंप्लीट रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं. इसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आप बच्चे को टाइम जितना मैक्सिमम दोगे वो उस लिहाज से रिकवरी की तरफ आएगा. एट द एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर ऑटिज्म. ऑटिज्म के डिफरेंट टाइप से ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी. इन सब तरीकों से जो उनसे ऑटिज्म के शिकार बच्चों का इलाज किया जा सकता है. दैट was all from us. If you have any question then you can ask. Thank you very much. Have a nice day. Allah Hafiz.